about a political showdown over these FIRs, then there is another case that has come to the fore, and this time it is a stunning allegation that has been made by the Delhi police in connection with the hoax bomb threats that schools in Delhi received over the last few months. Now, the Delhi police has gone ahead and has made a revelation that has sent shockwaves not just in the political circles but also across the capital. Now, there was a private school student who was recently apprehended by the cops, and he was apprehended for allegedly sending these emails. And now the cops have found out that 400 such emails were sent by those involved. Now, the family of this juvenile, as per the Delhi police, works with an NGO. The Delhi police goes on to say, now this is an NGO that has deep links with a particular political party. They've not named any party. They've also gone on to reveal that this is the NGO that was involved in legitimizing Afzal Guru, a terrorist who was convicted for his role in the 2001 Parliament attack. Now, sources are revealing that the influence of the NGO and its proximity to a political party is raising critical questions about a possible larger conspiracy to create public unrest through disruptive tactics. Now, as per sources, the accused sent the first threat mail in May 2024. Now, this mail was sent, like we've been telling you, to about 400 private and public schools in the NCR region. Now, sources have also revealed that the sender used an open source to find the school's email addresses. However, the sender could not be traced as he used a VPN. So his location could not be tracked. Now again, cut to 8th of January, that is this year, a threat mail was sent to 23 schools in the national capital, and this time the email provided a significant clue to the police, which led to the arrest of this accused, who is a minor. And the questioning, as per the police, has led to all these revelations. तो हमें पता चला है कि इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। हम ये भी देखना चाहते थे कि एक बच्चा अकेला ये कैसे अपने आप अंजाम दे सकता है इस तरह के जो पूरे प्रकरण को। तो हमने इसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है, और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। जब इस एनजीओ की प्रारंभिक जांच की गई तो पता चला कि ये एनजीओ एक ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप का पार्ट है जो कि जैसे अफजल गुरु की हैंगिंग की लेजिटिमेसी को लेकर प्रश्न उठाता है। We're going to break down graphically what the Delhi police has managed to connect when it comes to this very probe. The target of these hoax bomb threats was schools in the capital. Now, what is this crime? That 400 threat mails were sent to schools across the capital over the last 1 year. Who did it? As of now, the police have apprehended a minor, and his questioning has revealed some startling details. What is the NGO angle that the cops are pointing out? Cops say that the father of this particular minor works with an NGO. And this NGO, police believes, has deep political links, and that is why the political angle has also emerged in the probe. What are the cops suspecting? The cops are suspecting, was there a larger political conspiracy behind these threats? Was there a larger conspiracy to vitiate the atmosphere in Delhi to gain political brownie points? The Bharatiya Janata Party has latched on to the revelations made by the police. There is a face-off brewing between the BJP and the Aam Aadmi Party over the investigation into the threats that were sent to schools in Delhi. The BJP is pointing out that all the revelations made by the police point at the role of the Aam Aadmi Party. The BJP is asking the Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal to clarify if his party has any connection to those involved in sending these threats to schools in the capital. Now, the BJP also goes on to say
that this reveals that how there's a larger plot at play by the Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party has also hit back. We'll play out reactions from the BJP and then show you how the Aam Aadmi Party is striking back. These all emails were originating from a person who is juvenile. इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक अपने मन से कर रहा है, इसका मतलब उसे शिक्षा कैसी दी जा रही है। दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सकती। मैं याद कराना चाहूंगी संजय सिंह जी को कि शराब घोटाले पर भी वो सबूत मांग रहे थे और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया कि 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिए, और वो पूरा का पूरा पैसा गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी की गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ। इसीलिए केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। जब शीश महल का मुद्दा आया तो फिर संजय सिंह जी बहुत पुरजोर तरीके से ऊंची आवाज में सबूत मांग रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट आई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। हर वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भागीदार मिलता है। आपदा पार्टी जो दिल्ली में सचमुच आपदा बनकर टूट पड़ी है, वो जब जांच सामने आएगी तो वो सत्य भी सामने आएंगे और इस आपदा से मुक्ति दिल्ली को मिले। Like we've been telling you, the Aam Aadmi Party has also hit back at the BJP for linking the Aam Aadmi Party to the investigation into the Delhi hoax bomb threat to schools. Now, the Aam Aadmi Party is accusing the BJP of concocting tales ahead of elections. The Congress is also reacting. Let's listen into all those reactions. दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नौकरी ज्वाइन किया है सुधांशु जी ने, लेटरल एंट्री हुई है उनकी। कैसे गए हैं वो? महिला सीपी हैं स्मृति ईरानी, ज्वाइंट सीपी हैं अनुराग ठाकुर। कौन है लोग? आप ऐसे ही कुछ भी हवा में बातें रोज लेके आ जाएंगे, रोज चलते। जो ये फ्लाइट्स को उड़ाने की धमकी दी गई, वो आम आदमी पार्टी वालों ने फ्लाइट्स उड़ाने की धमकी दी। जो दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई 10 महीने से, आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। 15 दिन पहले, इलेक्शन के पहले आपको राजनीति सूझ रही है दिमाग में। भारत की सुरक्षा के साथ आपने मजाक बना रखा है। 10.5 साल में पूरे देश में जगह जगह बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुमने बसाया, भाजपाइयों। तुमको हम जवाब देते फिरेंगे। देखिए, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन होता है और जो भी उसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, वो तो बहुत गंभीर मामला है, ठीक है, और किसी एनजीओ से अगर जुड़ा हुआ है तो ये भी पता करना पड़ेगा कि संस्था की नीति से हुआ है या संस्था में कोई व्यक्ति कर रहा है। जरूरी नहीं है भाई साहब कोई भारत सरकार में बैठ के कोई अधिकारी गलत काम करे, तो ये एक बार जरूर तय करना पड़ेगा। इसके मुझे कुछ और जर्नलिस्टों ने भी पूछा, उन्होंने ये भी कहा कि कोई आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के पिताजी कोई उस संस्था में थे। तो मैंने ये कहा कि अगर वो उसमें हैं, आज भी हैं, और संस्था की इसमें संलिप्त है तो गंभीर मामला है। नहीं तो कोई कहीं पहले काम कर रहा था, उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व बचता नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी नेता का कोई परिवार उसमें जुड़ा हुआ है तो मैं यही आशा करूंगा कि वो एक बार बस आकर इसको क्लैरिफाई कर दें। मैं लगातार आपके सामने एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जनता के दिल्ली के मुद्दों को से दिमाग भटका रहे हैं और भटकाकर दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप बार बार मेरे से बात कर रही हैं और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं। आज नया चेहरा सामने आया, स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट देने का आरोप लगाना और बॉम्ब थ्रेट का जवाब देना। ये दिल्ली की जनता
के साथ मजाक दोनों पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा। दोनों केंद्र सरकार भाजपा की और राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। Shifting focus to breaking news that